Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In today's video, we are going to talk about linear functions and equation of a line. So this is our continuation of the series that I am doing for mathematical methods for economics 1, which is a course for undergraduate BA economics honor students. So if you are new to my channel, please consider subscribing to my channel. And if you are already been with me, thank you so much for your constant support. So without further ado, let's get into the video. All right, so first things first, we are going to talk about what are linear functions, and then we will jump on to what is the slope of a straight line, and then how to find a general form of equation of a straight line. So अगर आपको दो points दिए हुए हैं, the line joining these two points, अगर आपको उसकी equation निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे, slope किस तरीके से क्या क्या different ways हो सकते हैं वो, and then basically this will the end of our chapter which is functions of one variable. उसका हमारा introduction portion जो है that will get finished after today. So in this entire chapter we saw a little bit of basics of what is function, what is domain, how to find domain, how to find range, what are some basics of graphs, and then today we are going to talk about linear function. So if you would like to know anything about any of the topic that I've just mentioned, you can, there is a playlist, Mathematical Methods for Economics 1. You can go there and watch all the videos related to that topic. So let's begin today's lecture and let's talk about the first topic, which is linear function. So सबसे पहले linear function होता क्या है? So जब भी आपको कोई भी दो variables हैं, x और y, इन दोनों के बीच में अगर आपको लीनियर रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करना होता है तो हम किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं? y is equals to ax plus b. This is the general form that we use. इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे वेरिएबल x चेंज हो रहा है, वेरिएबल y भी लीनियरली चेंज हो रहा है. लीनियरली चेंज होने का मतलब है कि जितना x चेंज हो रहा है उसका कोई एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन मल्टीप्लाई होके उतना ही y चेंज हो रहा है. सो दे आर लीनियरली चेंजिंग. हम कई बार बोलते हैं कि योर ग्रोथ विल बी एक्सपोनेंशियल. इस एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है कांस्टेंट रेट से ग्रो ना करना, एक्सपोनेंशियल रेट से ग्रो करना. लीनियरली ग्रो करने का मतलब है कि जितना आप एक्स इंक्रीज करोगे उसी प्रोपोर्शन से आपका वाई इंक्रीज करेगा. ठीक है, सो दिस इज व्हाट इट मेंट बाय लीनियर ग्रोथ. ओके, सो कोई भी अगर आप एक फंक्शन लिख देते हो एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, so this function f would be called, this will be called a linear function. It will be called a linear function. Okay, so ये linear function होगा. अब ये linear function के कुछ कुछ characteristics हैं. this a is called slope and this b is called y-intercept. So this a and b are constant, x is my variable and fx is the value of this function. So यहाँ पे ये जो a constant है इसको हम लोग बोलते हैं slope और ये जो b है इसको हम लोग बोलते हैं y-intercept. अब इसका मतलब क्या है? What does that mean? So अब आप देखो, suppose मुझे पता है कि मेरे function की value जो है it is fx at x, right? अब मैं आपको बोलूं कि अगर x की वैल्यू 1 यूनिट से इंक्रीज होती है, सो x प्लस 1 पे मेरे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? अगर कोई आपसे ये पूछे, देन व्हाट विल यू डू? आई विल जस्ट पुट सिंपली x प्लस 1 इन माय फंक्शन एंड दैट विल टेल मी दैट वैल्यू x प्लस 1, राइट? यस, fx प्लस 1 एट x प्लस 1. तो अब मुझे अगर इफ आई डू दिस, इफ आई फाइंड fx प्लस 1 माइनस fx, सो बेसिकली मैं फाइंड आउट करने की कोशिश क्या कर रही हूँ कि मेरी x की वैल्यू अगर 1 यूनिट से इंक्रीज हुई है तो मेरी फंक्शन वैल्यू जो है वो कितनी चेंज हुई. सो चेंज इन द फंक्शन वैल्यू व्हेन x यूनिट इंक्रीज्ड बाय x इंक्रीज बाय 1 यूनिट. आई वांट टू फाइंड दैट. ठीक है, सो एफ एक्स प्लस 1 क्या होगा? मुझे पता है एफ एक्स इज व्हाट, ए एक्स प्लस 1 प्लस बी, राइट? बिकॉज मुझे पता है मेरा एफ एक्स फंक्शन इज दिस, राइट? सो यहाँ पे x की जगह मैंने x प्लस 1 पुट किया एंड देन दैट इज व्हाट आई डिड.
एंड देन व्हाट डिड आई डू, माइनस ax प्लस b। अब मुझे अगर मैं ये कैलकुलेट कर दूंगी, यही मुझे बताएगा कि x की वैल्यू अगर 1 यूनिट से इंक्रीज हुई है तो मेरी फंक्शन वैल्यू कितने यूनिट से इंक्रीज करेगी, राइट, या डिक्रीज करेगी, जो भी हमारा है सिचुएशन। ठीक है, सो अब मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, ax प्लस a प्लस b माइनस ax माइनस b। ठीक है, ax and ax get cancelled, b and b also get cancelled, तो मेरे पास सिर्फ क्या बचा, a। और a को मैंने एक स्पेशल नाम दिया हुआ है जिसका नाम क्या है, स्लोप, राइट। सो स्लोप, अब अभी हम ये सब जो निकाल रहे थे, ये हम लोग क्या कर रहे थे कि what is the change in function value when x increases by 1 unit। तो अगर x 1 यूनिट से इंक्रीज करता है तो मेरी फंक्शन वैल्यू कितनी यूनिट से इंक्रीज या डिक्रीज करेगी, दैट इज गिवन बाय स्लोप। सो आपकी जो स्लोप है, स्लोप इज नथिंग बट मेजर्स, it measures the change in function value, the change in function value when x increases by 1 unit, right? So when x increases by 1 unit, by how much your function value changes, उसका ये जो पूरी इंटरप्रिटेशन है इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप। ठीक है, सो अब आप देखो कि अगर ये जो a वैल्यू है, इफ अगर इट इज पॉजिटिव, तब हम बोलते हैं कि हमारा जो फंक्शन है इट इज अपवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग। या x की वैल्यू अगर इंक्रीज कर रही है तो y जो है उसकी वैल्यू भी जो है इंक्रीज करेगी। और अगर a नेगेटिव है तो हम क्या बोलते हैं, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। जो भी कर्व बनेगा, ये जो y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी है, इसका जो भी कर्व बनेगा उसको हम लोग डाउनवर्ड स्लोपिंग बोलते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन होगी उसकी। ठीक है, और ये जो वैल्यू ऑफ ए है, वैल्यू ऑफ ए, सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड मतलब द एब्सोल्यूट अमाउंट। सो ए चाहे नेगेटिव भी है बट अमाउंट कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए विल मेजर द स्टीपनेस ऑफ द लाइन। अब ये जो y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी है, दिस इज एक्चुअली इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ठीक है, सो लाइन जो मेरी बनेगी अगर मैं उसको प्लॉट करती हूँ तो वो कितनी स्टीप होगी, स्टीप और फ्लैट। सो अगर एक फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस एक फ्लैट सरफेस है जिस पे वॉक करना बहुत आसान है, बट अगर एक स्टीप सरफेस है तो उस पे वॉक करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि चढ़ाई बहुत है, चाहे आपको नीचे जाना हो चाहे आपको ऊपर जाना हो, राइट। सो स्टीपनेस कितनी होगी उस लाइन की, वो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए पे। ठीक है, सो दिस टेल्स यू द स्टीपनेस ऑफ द लाइन। और अगर ए की वैल्यू 0 है, इफ ए इज 0, दैट मीन्स द लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब ये जो भी हमने बात की है इसको हम ग्राफिकली समझेंगे कि हमने क्या बात की है और स्लोप क्या होती है और ये बी क्या है और ये स्टीपनेस क्या है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, और हमने ये जो बी की बात की थी, बी इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट, राइट। सो वाई इंटरसेप्ट बेसिकली होता क्या है, वाई इंटरसेप्ट इज नथिंग बट अगर आप फंक्शन में एक्स की वैल्यू 0 रख दोगे, राइट, अगर मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 रख दूंगी तो मेरे फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, माई फंक्शन वैल्यू इज नथिंग बट बी, राइट। सो जब आप एक्स की वैल्यू 0 रखोगे तो जो भी आपकी फंक्शन वैल्यू आती है उसको हम लोग बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ value of function when x equals to 0, उसको हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट या फिर b। ठीक है, अब जो है हम लोग अलग अलग चीजों को थोड़ा सा, अब ये जो हमने लीनियर फंक्शन देखा है एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, या फिर इसको आप y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी भी लिख सकते हो, इसको हम लोग प्लॉट करके देखते हैं। ठीक है, या फिर ग्राफिकली देखते हैं कि हाउ डज इट लुक लाइक। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट a straight line, equation of a straight line. ठीक है, so let's say I have y equals to ax plus b
and this a is greater than 0, a is greater than 0 and let's say b is also greater than 0, इसका मतलब क्या है, y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, जब x की वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू 0 है तो मेरे फंक्शन की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू b है और b पॉजिटिव है, तो b पॉजिटिव है तो मतलब b की कुछ वैल्यू यहाँ पे होनी चाहिए जब x की वैल्यू 0 है, राइट। सो दिस माई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, राइट। उसके अलावा और हमें पता है कि a की वैल्यू जो है पॉजिटिव है, a की वैल्यू पॉजिटिव का मतलब हमने क्या देखा था, द कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग and a basically tells me how much is my change in y value when x increases by 1 unit. So if x is increasing by 1 unit, my function value is increasing, it's positive, मतलब the change in function value is positive, मतलब मेरा function जो है grow कर रहा है। So एक तरीके से हमारा जो curve है वो कुछ इस तरीके से हमें दिखना चाहिए, so it's going up and it's going down, इस तरीके से मुझे मेरी इक्वेशन दिखेगी, ठीक है। और so this is my y intercept, this is my y intercept, right, and in this case a was positive and b is also positive, right। अब अगर ऐसा हो जाए कि a नेगेटिव हो जाए, अगर a नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब क्या है, मेरी जो लाइन है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, राइट। सो सपोज I have to plot y equals to ax plus b only and a is negative and let's say b is positive, b is positive, b is greater than 0, so b is greater than 0 मतलब मेरा y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, राइट, मतलब x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू सम पॉजिटिव नंबर विच इज b, लेट्स से दिस, एंड जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज कर रही है फंक्शन की जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी, राइट, बिकॉज a इज नेगेटिव एंड इट इज द स्लोप, राइट। सो इसको मैं अगर प्लॉट करूं तो वो कैसा दिखेगा, इट लुक समथिंग लाइक दिस, कि इट इज गोइंग डाउन, राइट। एंड ये वाला पॉइंट क्या होगा, टेल मी क्विकली, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज दिस पॉइंट, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे व्हाट वैल्यू इज 0, सो दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस, ये पॉइंट पे मेरी y की जो वैल्यू है वो 0 है, राइट। सो व्हेन योर y वैल्यू इज 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, सो x वैल्यू इज व्हाट, x equals to minus b by a, so this point is minus b by a, but minus b by a can also be called as x intercept, x intercept क्यों, वो पॉइंट ऑन द x एक्सिस जहां पे y की वैल्यू 0 है, y इंटरसेप्ट की मीनिंग क्या था, कि वो पॉइंट ऑन y एक्सिस जहां पे x की वैल्यू 0 होती है, सो इसको आप x इंटरसेप्ट भी बोल सकते हो, ओके। एंड सिमिलरली अगर मैं तीसरा केस एक बारी देखना चाहूं कि अगर मेरे a की वैल्यू 0 है, सो इफ माई a इज 0 देन व्हाट इज माई फंक्शन, y इक्वल्स टू b, एक y इक्वल्स टू b मेरे पास इक्वेशन है, अब y इक्वल्स टू b, लेट्स से b इज पॉजिटिव, तो अब मैं उसको कैसे प्लॉट करूंगी, y की वैल्यू जो है मेरी b ही है, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे x की वैल्यू 0 हो, 1 हो, 2 हो, -1 -2 एनीथिंग, so basically let's say this is b, so at every point my y is taking b, right, so मेरी जो लाइन है वो किस तरीके की हो जाएगी, it will start looking like this, right, it's a line which is parallel to the x axis, okay। So this is how we will plot different kinds of linear function based on a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, उसका साइन क्या है, ठीक है। चलो, so this is where a is positive, this is where a is negative, this is where a is 0, so हमने basically तीनों cases एक बारी देख लिए, so this is upward sloping case, this is downward sloping case and this is horizontal case, so a line is parallel to x axis, okay। चलो, let's move on to another topic for today which is slope of a line, slope of a line, so हमने देख लिया a जो है that is a slope of my line, so अगर मुझे किसी ने इक्वेशन दी हुई है तो मैं निकाल लूंगी कि a की वैल्यू x के सामने जो भी कोएफिशिएंट होगा वो मेरी स्लोप होगी, बट काफी बार ऐसा हो सकता है कि आपको इस तरीके से इस फॉर्म में इक्वेशन दी ही ना हो, तब आपको अगर स्लोप निकालनी हो तो आप क्या करोगे, ठीक है। सो अगर आपको किसी ने 2 पॉइंट्स दिए हैं, दे हैव गिवन यू 2 पॉइंट्स, ठीक है। So if they have given you 2 points and they have asked, please tell me what is the slope of the line joining these 2 points, ठीक है।
सो अब किसी ने क्या दिया आपको, कोई दो पॉइंट्स दे दिए x1 y1 एंड x2 y2, एंड दीज टू आर डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। डिस्टिंक्ट पॉइंट्स का मतलब क्या है कि ये दोनों पॉइंट्स अलग अलग हैं, ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट है और उसी पे दूसरा पॉइंट ओवरलैप कर रहा है। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन अ लाइन, लेट्स से उस लाइन को हम बोल रहे हैं एल, कोई एक लाइन है एल, उस पे दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, अलग अलग पॉइंट्स हैं। तो ये जो लाइन होगी, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन एल, वो क्या होगी, स्लोप ऑफ दैट लाइन क्या होगी। तो अगर आपको दो पॉइंट्स दिए हैं किसी लाइन पे और उनका अगर स्लोप उस लाइन का स्लोप निकालना है, तो वो क्या होगा, स्लोप इज नथिंग बट, ए से भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं जैसे हमने देखा, दैट इज नथिंग बट, आप वाई कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिफरेंस ले लो, y2 माइनस y1 एंड डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, राइट। दिस विल टेल मी व्हाट इज द स्लोप ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एंड x1 शुड नॉट बी इक्वल टू x2, ठीक है। मेरी ये फॉर्मूला ओनली अप्लाइज व्हेन x1 इज नॉट इक्वल टू x2, ठीक है, नॉन वर्टिकल लाइंस। ओके, सो अब ये हुआ कैसे, हमने देखा है, हम जब स्लोप को डिस्कस कर रहे थे, तो स्लोप का मतलब क्या होता है कि जब x की वैल्यू 1 यूनिट से इंक्रीज करे, आई एम सो सॉरी, ऑलराइट, coming back to where we were, या सो जब हम ओके, सो जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि स्लोप का मीनिंग क्या होता है, तो स्लोप का मीनिंग क्या था, जब x की वैल्यू 1 यूनिट से इंक्रीज हो रही है तो y की वैल्यू कितने यूनिट से चेंज हो रही है, ये हमें निकालना था, ठीक है। सो जब अगर आपको दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो हमें पता है कि मेरा जो x वैल्यूज है वो कहाँ से कहाँ तक चेंज हुई है, x वैल्यू मान लो x1 से लेके x2 तक चेंज हुई है, राइट। सो जब मेरी x की वैल्यू कितने यूनिट से चेंज हुई है, लेट्स से x2 इज द बिगर वन, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, x2 इज द बिगर वन, तो मेरे x की वैल्यू टोटल कितनी चेंज हुई है, x2 माइनस x1। सो जब मेरी फंक्शन मेरी जो x की वैल्यू है x2 माइनस x1 चेंज हुई, तो मेरे फंक्शन में कितना चेंज आया, फंक्शन में कितना चेंज आया, y2 माइनस y1, राइट। यही हुआ है कि ये एक पॉइंट है x1 y1, ये एक पॉइंट है x2 y2। जब x की वैल्यू यहां से यहां जंप की, तो फंक्शन की वैल्यू y1 से y2 पे जंप की। सो मैंने अगर x में इतना चेंज किया तो मेरे y में इतना चेंज है। बट स्लोप क्या होता है कि अगर x की वैल्यू 1 यूनिट से चेंज हो तो y की वैल्यू में कितना चेंज आया, ओनली दैट 1 यूनिट। सो यूनिटरी मेथड हमको क्या बोलता है कि अगर 1 यूनिट चेंज इन x से y में कितना चेंज आया, वो अगर हमें बताना है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक इतने यूनिट में इतना चेंज, 1 यूनिट में कितना चेंज, दिस डिवाइडेड बाय दिस, राइट। सो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, और and this quantity that I have found, this is nothing but the slope, right? So that is why my slope is this particular quantity. तो अगर आपको दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो आप इस तरीके से जो है अपने स्लोप को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके से हमने स्लोप फाइंड आउट किया, ओके, और राइट, सो आपने स्लोप फाइंड आउट कर लिया, स्लोप इज डन, ठीक है। अब हम लोग एक दूसरी सिचुएशन में आते हैं, ठीक है। सपोज हमें किसी ने स्लोप दे रखा है, स्लोप इज गिवन, स्लोप इज गिवन, और जो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है उसका स्लोप वी नो ए मतलब द स्लोप इज कांस्टेंट, एक्स की कोई भी वैल्यू चेक कर लो, हमेशा स्लोप इज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, अगर स्लोप गिवन है और आपको एक पॉइंट दिया हुआ है, 1 पॉइंट इज गिवन, 1 पॉइंट ऑफ अ लाइन इज गिवन,
ठीक है, स्लोप दिया हुआ है और कोई एक पॉइंट लाइन का दिया हुआ है, स्लोप लेट से ए है और वो जो पॉइंट है लेट से x1 y1 है। अगर आपको ये सब दिया हुआ है और अगर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, देन हाउ विल यू फाइंड आउट? हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? अब मान लेते हैं कि कोई भी एक पॉइंट है एक्स वाई, कोई भी एक पॉइंट है एक्स वाई जनरल लाइन में, राइट? मेरे को पता है कि कोई भी दो पॉइंट्स अगर दिए हुए हैं तो उसको यूज करके मैं स्लोप ऑफ द लाइन कैसे निकाल सकती हूँ, राइट? सो इसका यूज करके मैं स्लोप ऑफ द लाइन लेट से निकालती हूँ। तो स्लोप ऑफ द लाइन क्या होगा? y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1, राइट? ये मुझे पता है, ये होगी स्लोप। और स्लोप मुझे किसी ने ऑलरेडी दिया हुआ है, सो दिस इज इक्वल टू a। सो ये भी स्लोप था और ये स्लोप मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये दोनों स्लोप सेम होने चाहिए। सो मैं इस प्रॉपर्टी का यूज करूंगी टू फाइंड आउट व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है? सो दिस x कॉमा y कोई एक जनरल पॉइंट है लाइन पे। अब मेरी लाइन ऐसी है, उस पे ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है, तो जनरल कोई भी पॉइंट एक्स वाई बोल देती हूँ, उसका यूज करके मैं इक्वेशन की लाइन बताना चाहती हूँ। सो मैंने ये दोनों पॉइंट्स का यूज करके स्लोप निकाला, जो कि हमने अभी अभी सीखा था कि दो पॉइंट्स दिए हुए हैं तो स्लोप कैसे निकालते हैं, तो वो मैंने निकाल लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, ये हो गई स्लोप ऑफ द लाइन और ये स्लोप ऑलरेडी किसी ने दी हुई है मुझे, तो इसका मैंने यूज किया, तो क्या हो गया, इन दोनों का यूज करके मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल ली। अभी इसको मैं अगर सिंपल अच्छे फॉर्मेट में लिखूं तो क्या होगा, y minus y1 if I multiply x minus x1 on this side, so I get what, a x minus x1. This is my equation of a line, इक्वेशन ऑफ लाइन जिसके एक पॉइंट और एक स्लोप मुझे पता है। ओके ओके, सो सपोज फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू कि प्लीज टेल मी व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू -2, 3। सो एक पॉइंट दे दिया, राइट? एंड उसकी स्लोप जो है, स्लोप इज -4। देन व्हाट विल यू डू? आई नो कि व्हाट आई हैव टू डू, y minus y1. So this is my x1 y1, right? So y1 is what? 3. So y minus y1 divided by x minus x1. x1 is what? -2. So -2. And this should be equal to the slope. This should be equal to -4. So बस मुझे simply इसको equate करना है. So y minus 3 divided by x plus 2 equals to -4. I will cross multiply now. So y minus 3 equals to minus 4x minus 8, right? So this is nothing but y equals to minus 4x and then ये जो 3 है यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, so this is -5, ठीक है? So अब आप ये देखो, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ एक जनरल फॉर्म जो मैंने वहां पे लिखी थी, what was what? y is ax plus b. So a की वैल्यू क्या हो गई? -4 एंड a इज नथिंग बट स्लोप, जो कि मुझे ऑलरेडी दिया भी हुआ है कि स्लोप इज -4। सो ये मैच हो गया। एंड माई व्हाट इज माई b इज व्हाट, y इंटरसेप्ट, तो माई y इंटरसेप्ट इज व्हाट, -5। मतलब x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी, -5। सो दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इज योर इक्वेशन ऑफ दैट लाइन, ओके, जो हमने बात की थी। ऑल राइट, सो आई होप दिस इज क्लियर। तो अब आपको जनरली किसी ने मान लो स्लोप नहीं दी, किसी ने, जैसे हमने यहाँ पे बोल दिया था कि किसी ने आपको स्लोप दे दी है और एक पॉइंट दे दिया है, तो आप एक इक्वेशन निकाल सकते हो। बट सपोज किसी ने आपको एक पॉइंट, दो पॉइंट दे दिए और बोला है कि प्लीज टेल मी व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, सो कैन यू फाइंड इट? तो पहले तो आप ये आंसर दो कि क्या आप निकाल सकते हो कि नहीं। तो पहली बात तो यू आर गिवन 2 पॉइंट्स, सो 2 पॉइंट्स का यूज करके आप क्या कर सकते हो, स्लोप निकाल सकते हो। हमने देखा 2 पॉइंट्स का यूज करके स्लोप कैसे निकालनी है। स्लोप कैसे निकालेंगे, y2 minus y1 divided by x2 minus x1, right? If I have 2 points, वो जो 2 पॉइंट्स है वो क्या है, x1 y1 and x2 y2, these are the 2 points that I have। इसका यूज करके मैंने स्लोप ऑफ द लाइन निकाल लिया, ये हो गया मेरा स्लोप। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। तो मुझे स्लोप तो ऑलरेडी पता है, दिस इज स्लोप एंड आई नो कि 1 पॉइंट एंड स्लोप अगर दी हुई हो तो इक्वेशन कैसे निकालते हैं, तो वो भी मैं निकाल सकती हूँ।
सो मेरी इक्वेशन किस तरीके से होगी? सो दिस इज माई स्लोप, इसको मैं बोल देती हूँ ए, और अगर किसी ने मेरे को ए दिया हुआ है तो मैं क्या करूंगी? y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स वन इक्वल्स टू ए। तो ए तो मैंने निकाल ही लिया होगा, और उसका यूज करके मैं सिंपली जो है सेम चीज कर दूंगी जो मैंने पहले की है, ठीक है। सो अगर आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो आप स्लोप निकालोगे, और फिर जो नॉर्मली 1 पॉइंट एंड स्लोप का यूज करके जैसे हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल रहे थे, सिंपली वी विल फॉलो दैट मेथड, ओके। सो दिस इज हाउ वी विल फाइंड इक्वेशंस अंडर डिफरेंट सिनेरियो। अब हमने जो 2 सिनेरियो देखे थे वो क्या थे, कि या तो आपको टू पॉइंट्स दिए हुए हैं तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालो, या फिर स्लोप दिया हुआ है एंड 1 पॉइंट दिया हुआ है। ये दोनों ही सिनेरियो में हमने देख लिया कि हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालेंगे, ठीक है। सो इकोनॉमिक्स में लीनियर जो फंक्शंस होते हैं दे आर क्वाइट वाइड स्प्रेड। जैसे कि जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो कंजम्पशन फंक्शन होता है, उसको भी लीनियर है। आपका डिमांड फंक्शन, सप्लाई फंक्शन, ये सब लीनियर तरीके से ही रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है। सो देयर इट इज इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि व्हाट इज द स्लोप, व्हाट इज वाई इंटरसेप्ट, व्हाट इज एक्स इंटरसेप्ट एंड ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स, ओके। सो अब बस एक जनरल हमारा जो फाइनल डिस्कशन है फॉर टुडेज लेक्चर वो कर लेते हैं, विच इज कि अगर मेरे को एक जनरल इक्वेशन देनी है लाइन की, जनरल फॉर्म देनी है, ठीक है। जैसे कि हमने देखा y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, ये भी एक लाइन है, राइट। एंड x इक्वल्स टू सी। हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस के बारे में सारी बातें कर ली थी, राइट। जैसे हमने देखा था यहाँ पे क्या, कि जैसे यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन, पॉजिटिव, अपवर्ड स्लोप, एवरीथिंग वी टॉक्ड अबाउट, बट वी डिड नॉट टॉक अबाउट दिस लाइन। ये भी तो एक लाइन ही है और इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, ठीक है। सो हमने यहाँ पे बोला था, जैसे जब हम लोग ये वाला डिस्कशन भी कर रहे थे, यहाँ पे हमने बात की थी कि दैट स्लोप ऑफ अ नॉन वर्टिकल लाइन, नॉन वर्टिकल लाइन। तो ये जब ये सारे जो डिस्कशंस किए हैं दे आर एप्लीकेबल फॉर नॉन वर्टिकल लाइन, ऐसी लाइन जो वर्टिकल नहीं है। वर्टिकल लाइन की प्रॉपर्टी क्या होती है? वर्टिकल लाइन की प्रॉपर्टी क्या होगी कि यहाँ पे एक्स वैल्यूज फिक्स्ड रहेंगे। एक्स की वैल्यू जो है, मान लीजिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 है, सो दिस इज अ लाइन विद द इक्वेशन एक्स इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। सो अब यहाँ पे आप स्लोप तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि x1 माइनस x2 जो भी आप करोगे दे विल टर्न आउट टू बी 0। x1 माइनस x2 जो भी आप करोगे दे विल टर्न आउट टू बी 0, राइट। सो मेरे पास पॉसिबिलिटीज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट लाइंस क्या हैं? या तो मेरी लाइन की इक्वेशन जो है वो इस तरीके से आ जाए, राइट। सो या तो ऐसा हो जाए कि इस फॉर्मेट में है, राइट। सो y वैल्यू, सो या तो मेरी लाइन इस फॉर्मेट में आ जाए, या तो फिर मेरी एक वर्टिकल लाइन आ जाए। ये दो केसेस मेरे पास हैं। सो वर्टिकल लाइन एंड दिस इज द नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। सो अब मैं ऐसा चाहती हूँ कि मेरे पास एक ऐसी इक्वेशन आ जाए जो जनरल हो, ठीक है। और फिर मैं क्या कर सकती हूँ, मैं उससे वर्टिकल लाइन भी रिप्रेजेंट कर लूं, और कोई भी टाइप की लाइन रिप्रेजेंट करनी है वो रिप्रेजेंट कर लूं। सो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम जो है, मैं अगर लिखूं दैट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, अगर मैं इस तरीके से लिखूं तो क्या होगा? सो देन व्हाट विल आई हैव? इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस केस में हम ये वाली फॉर्म भी अचीव कर सकते हैं, ये वाली फॉर्म भी अचीव कर सकते हैं। अब इस इक्वेशन का यूज करके मैं ये वाली फॉर्म अचीव नहीं कर सकती, राइट। क्योंकि मैं क्या वैल्यूज दूं, मैं ए को 0 वैल्यू दे सकती हूँ, जिससे क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू बी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। बट ये वाली फॉर्मेट ऑफ लाइन मैं यहां से डराइव नहीं कर सकती। सो इसीलिए मैं एक जनरल फॉर्म चाह रही हूँ जिससे मैं ये भी डराइव कर सकूं और ये भी डराइव कर सकूं। सो अगर ये फॉर्मेट है, दिस इज कॉल्ड अ जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म, और यू कैन से इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है। इसको मैं एक जनरल फॉर्म और जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन बोल रही हूं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, अब मैं इस लाइन से ये सारे पॉइंट्स कैसे अचीव कर सकती हूँ? सो आप क्या करो,
अगर आप कैपिटल ए जो है, अगर आपका कैपिटल ए है, कैपिटल ए को मैं स्मॉल ए बोल दूं, राइट, और जो कैपिटल बी है उसको मैं -1 बोल दूं, और सी जो है उसको मैं बोल दूं स्मॉल बी, तो क्या मेरी ये वाली इक्वेशन आ जाएगी ऊपर वाली? सो मैंने क्या किया, कैपिटल ए को ए बोल दिया, सो ए एक्स माइनस वाई प्लस बी इक्वल्स टू 0। सो मेरी कौन सी इक्वेशन आ गई जो मैंने पहले ऊपर देखी थी? तो इसमें कुछ कुछ वैल्यूज असाइन करके मैं यहां तक आ गई, राइट। अब सिमिलरली अगर मुझे ये वाली इक्वेशन डिराइव करनी है यूजिंग दिस, सो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी दैट आई शुड हैव? सो मैं अगर ए की वैल्यू 1 लूं, सी की वैल्यू -c लूं और बी की वैल्यू 0 ले लूं, सो ए की वैल्यू 1 लेनी है मुझे, ए की वैल्यू 1 ले ली तो x, बी की वैल्यू 0 प्लस 0, सी की वैल्यू -c इक्वल्स टू 0, देन आई गेट व्हाट, x इक्वल्स टू c, राइट। So this is the general form of a line which covers normal lines also and vertical line also. So this is the general form of a line, right? General equation of a line, जिसमें vertical line and non-vertical line and horizontal line, every kind of line we have covered. Okay. So this is how you represent different kinds of lines. ठीक है. So इस तरीके से जो है हमने इसको देखा। अब हमारे पास क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं कि आपको दो इक्वेशंस दिए हुए हैं, उनको आपको सॉल्व करना है। सो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आपको आना चाहिए। अगर आपको बोला है कि ग्राफिकली आपको लीनियर दो लाइंस हैं, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, सो आपको लाइंस प्लॉट करने आने चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। ऑल राइट। All right, so this is all for today's video. In our next video, we will do a few problems. So अगर आपको दो equations, दो linear equations दी हैं, आप उसको कैसे solve करोगे, both algebra का use करके and graphically also, and हम फिर थोड़ा सा linear inequalities को plot करने के बारे में भी देखेंगे कि एक budget set अगर आपको दिया हुआ है तो आप इसको कैसे plot करोगे. So this is quite relevant from economics point of view also, क्योंकि आप अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब आप ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स करोगे, देन दिस टॉपिक विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी विल ट्राई एंड लुक एट ऑल दैट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. So I hope you liked today's video and you were able to understand it. Please do let me know in the comment box if you were not able to understand anything, or you have any other request for any other different types of videos. It'll be my pleasure to go through your request. And if you like the kind of videos that I'm making, please consider subscribing to my channel and share it with your friends so that they could also benefit. And I will see you in the next lecture. Till then, take care and have a good day. Thank you so much.